میں بات کریں گے یوم تکریم کے حوالے سے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اس متعلق کہنا ہے کہ یوم تکریم شہداء قومی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں، اپنے شہداء اور ان کی فیملیز کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ صوبائی وزراء اور حکام شہداء کی یادگاروں پر حاضری دیں گے اور پھول بھی چڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ کا یوم تکریم شہداء کے موقع پر کہنا تھا کہ شہدائے وطن ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، قوم کی شہید ہیروز اور ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں نقش ہیں۔ وطن کی مٹی شہداء کے قیمتی خون کی مخلوق ہے، آج ہم اس لیے محفوظ ہیں کیونکہ شہداء نے اپنی جانیں دے دی ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس یوم تکریم شہداء بھرپور جوش و جذبے سے منائے گی۔ اگلے تعلیمی سال سے تمام پولیس شہداء کے بچوں کو انڈوپمنٹ فنڈ کے تحت اعلیٰ تعلیم فراہم کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ یوم تکریم شہداء کی آمد آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی غازیوں اور شہداء کے ورثاء سے ملاقات۔ ڈاکٹر عثمان انور نے 25 شہداء کے ورثاء کو گولڈ میڈلز، 25 غازیوں کو سلور میڈل سے بھی نوازا، تو وہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہید کانسٹیبل کی بہن کو محکمہ پولیس میں ملازمت دے دی ہے۔ آج سی پی او آفس میں شہداء کے ورثاء اور غازیوں کو میڈلز دینے کی تقریب کے دوران شہید کانسٹیبل ذیشان علی کی والدہ عبدیدہ ہو گئی۔ شہید کانسٹیبل کی والدہ نے آئی جی پنجاب کو بیٹی کی ملازمت کے لیے درخواست کی اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فوری ایکشن لیتے ہوئے چند ہی گھنٹوں میں شہید کی بہن کو ملازمت کا تقرر نامہ دے دیا۔ شہید کی بہن کو آر پی او راولپنڈی ریجن کے تحت آبائی علاقے جہلم میں جونیئر کلرک تعینات کیا گیا ہے۔ 9 مئی واقعے کی بات کریں تو 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے کی سازش ایک روز قبل زمان پارک میں تیار کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے 6 اہم رہنما شرپسندوں سے مسلسل رابطے میں رہے، بلوائیوں سے رابطوں کا ریکارڈ سامنے آ گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے مجاہد لطیف۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد حساس تنصیبات پر حملوں کا منصوبہ 8 مئی کو زمان پارک میں تیار کیا گیا۔ ٹیکنیکل تجزیے اور جیو فینسنگ سے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے رابطوں سے متعلق ہوشربہ انکشافات۔ ٹیکنیکل تجزیے اور جیو فینسنگ سے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کے رابطوں سے متعلق ہوشربہ انکشافات۔ پی ٹی آئی کی 6 اہم شخصیات کے روابط کا ریکارڈ سامنے آ گیا۔ 8 مئی زمان پارک اور 9 مئی جناح ہاؤس میں 154 موبائل نمبرز مشترکہ پائے گئے۔ یاسمین راشد، حماد اظہر، محمود رشید، اعجاز چودھری، میاں اسم اقبال اور مراد راس بلوائیوں سے مسلسل رابطے میں رہے۔ 215 کالرز 9 مئی کو ان رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ جیو فینسنگ ریکارڈ کے مطابق یاسمین راشد کا بذریعہ کالرز رابطہ 41 مرتبہ ہوا۔ حماد اظہر کے موبائل نمبر سے 10 کالز شرپسندوں کو کی گئیں۔ میاں محمود رشید 75 بار موبائل رابطوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔ اعجاز چودھری کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کالز کا ریکارڈ 50 رہا۔ میاں اسم اقبال 16، مراد راس نے 23 کالز جناح ہاؤس میں موجود شرپسندوں کو کی ہیں۔ جیو فینسنگ کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے قبل ہی تمام پلان تیار کر لیا گیا تھا۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں اور نظر بندیوں سے متعلق کیس، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے درخواست اعتراض پر سماعت سے معذرت کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ کے روبرو آمنہ ملک کی درخواست اعتراض کے ساتھ پیش کی گئی تو فاصل جج نے اس پر سماعت سے معذرت کر لی، تو وہیں درخواست اعتراض کے ساتھ چیف جسٹس کو بھجوائی تاکہ اسے کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے پیش کیا جا سکے۔ اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے درخواست پر سماعت سے معذوری کا اظہار کیا تھا۔ درخواست میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی نظر بندیوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اے ٹی سی عدالت نے جناح ہاؤس کی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں خدیجہ شاہ اور ہما سعید کو 7 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ جناح ہاؤس کی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ۔ پولیس نے سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کی بیٹی خدیجہ شاہ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمہ کی شناخت درکار ہے، شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد خدیجہ شاہ اور ہما سعید کا 7 روز کا جوڈیشل ریمانڈ دیا اور شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ عدالت نے خدیجہ شاہ اور ہما سعید کو شناخت پریڈ کے بعد 30 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت کی اجازت سے خدیجہ شاہ نے اپنے شوہر سے بھی ملاقات کی۔ اس سے پہلے خدیجہ شاہ 2 گھنٹے تک پریزن وین میں رہیں۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں سے طبیعت کی خرابی کی شکایت کی۔ پی ٹی آئی کو خیر بات کہنے والے جلیل شرکپوری کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ 9 مئی واقعات پر نہایت افسوس ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
پی ٹی آئی کے سابق رکن جلیل شرکپوری کی پریس کانفرنس، کہا کہ 9 مئی کو جو ملکی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا اس پر افسوس ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس ہماری طاقت کی علامت ہے، اس پر حملہ ناقابل معافی ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس جو ہماری طاقت کی علامت ہے، اس کی اگر ایک اینٹ کو کوئی گلیل مار کر بھی توڑ دے تو وہ بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ چاہے جائے کہ وہ پوری بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی اور کوئی روک نہ سکا۔ جنہوں نے جرم کیا ان کو تو معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جلیل شرکپوری نے کہا کہ جب عدم اعتماد ہوئی تب ذاتی طور پر عمران خان کو حالات سے آگاہ کیا۔ عمران خان کے بیانات سے ایسا تاثر ملا کہ وہ فوج دشمن ہے۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہو گیا جب پاک افواج کو حرف تنقید بنا دیا گیا اور اس کے بدلے میں ہمارے کئی ماؤں کے بچے شہید ہو گئے اور بے شمار بچوں کے جو مائیں جو ہے وہ بیچاری مطلب اب دیوانوں کی طرف پھر رہی ہیں، تو اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا رسپانسیبل عمران خان صاحب ہیں اور بالکل اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے، لیکن ان کا غلط بیانیہ اس کا باعث بنا کہ قوم کو انتشار کی طرف لے گئے اور آج ہم پریشان بیٹھے ہیں۔ جلیل شرکپوری نے پریس کانفرنس کے اختتام پر کہا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی نالائکی کا ملبہ سارا فوج پر ڈال دیا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے انکشاف کیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ شاہ محمود قریشی سنبھالیں گے۔ عمران خان کو جناح ہاؤس میں الٹا لٹکایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ جناح ہاؤس کا دورہ کریں۔ جو دشمن بھارت نہ کر سکا وہ عمران خان نے کر دکھایا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جناح ہاؤس کا دورہ شرپسندوں کے حملے سے تباہال عمارت دیکھ کر رنجیدہ ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ 9 مئی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب ہوا۔ جناح ہاؤس کے اندر مسجد کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ قائد اعظم کی ریزیڈنسی کور کمانڈر ہاؤس ہی نہیں بلکہ شہداء کی یادگاروں کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اس سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان میرے لیے یہ بات بھی تکلیف دہ ہے کہ یہاں پر موجود مسجد کو بھی نہیں بخشا گیا۔ کامران ٹیسوری نے بتایا یہ وہی غصہ ہے جو پڑوسی ملک بھارت کی آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ عمران خان عرصہ دراز سے معصوم شہریوں کو ورغلا رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ اب شاہ محمود قریشی سنبھالیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے گدی نشین ہیں اور پاکستان سے جو محبت ان کو اور ان کے مریدوں کو ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ ہی دنوں میں آگے آئیں گے اور وہ شاید اعلان کریں کہ وہ پی ٹی آئی پاکستان کے نام سے اپنی پارٹی کی سربراہی کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے ہمیشہ یو ٹرن لیے۔ سندھ کے گورنر ہاؤس کو ہم نے پہلی مرتبہ عوام کے لیے کھولا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الائٹ اسکول چائنا اسکیم کیمپس کی جانب سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اظہار یکجہتی کے لیے واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ عرصے وطن کی بقا کی وجہ پاکستانی فوج ہے۔ ننھے بچوں نے بڑے ہو کر افواج پاکستان میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور شہداء کو خراج عقیدت۔ الائٹ اسکول چائنا اسکیم کیمپس کی جانب سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ مستقبل کے مماروں نے عرض وطن کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں سے اظہار محبت کیا۔ بچوں نے بڑے ہو کر افواج پاکستان میں شمولیت کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ رنگ جچتا ہے برابر ہم پر، یوں تو ہر رنگ جچتا ہے برابر ہم پر، مگر یونیفارم میں آتے ہیں تو چھا جاتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان آرمی آپ کے صبر کو سلام، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پر۔ اسکول کی پرنسپل صوبیہ قاضی کا کہنا تھا کہ پاک فوج دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے۔ شہدائے وطن ہمارا اثاثہ ہیں۔ تقریباً 1,500 کے قریب بچہ جو ہے آج اپنی پاکستان فوج کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور آرمی کی جو خدمات ہیں، سروسز ہیں، قربانیاں ہیں، لازوال ہیں، بے مثال ہیں، بے مثل ہیں۔ ہم تو ان کی ایک رات کا مول نہیں دے سکتے کہ جب ہم اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں تو میرے پاک فوج کے نوجوان جو ہیں وہ بارڈروں پر ہماری حفاظت پہ موجود ہوتے ہیں۔ بچوں نے کرنل شیر خان سمیت تمام شہداء کی وطن کے لیے لازوال قربانیوں پر گارڈ آف آنر پیش کیا۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 72 مستعفی ایم این ایز کے استعفوں کے خلاف درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن کے استعفے منظور کرنے کی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ 25 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
लाहौर हाईकोर्ट ने एक की नौयत की 3 दरखास्तों पर 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतेहाना, फवाद चौधरी और दीगर की दरखास्तों पर फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने के नोटिफिकेशन आइन और असम्बली रूल्स के खिलाफ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे मंजूर करने के नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली मुस्ताफी अराकीन के इस्तीफों की तस्दीक के लिए अराकीन को तलब करें और 2 मौके फराहम करें। फैसले में मजीद कहा गया है कि इस्तीफों की तस्दीक का अमल मुकम्मल होने से पहले मुस्ताफी अराकीन अपने इस्तीफे वापस ले सकते हैं। मुस्ताफी अराकीन सेक्रेटरी कौमी असम्बली को तहरीरी तौर पर बताकर अपने इस्तीफे वापस ले सकते हैं। सेक्रेटरी असम्बली अराकीन के कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के हवाले से इक़दामात करे। इस प्रोसेस के बाद दिए गए इस्तीफे गैर मौसर तस्वुर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने के इक़दाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद पंछी उड़ने को तैयार हैं और जहांगीर तरीन ने लाहौर में सियासी दफ्तर कायम कर लिया है। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी मुतहरिक हैं। ज़ाहिर के मुताबिक जहांगीर तरीन से मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जहांगीर तरीन से 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात मुलाकात कर चुके हैं। जल्द ही तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीटीआई में जाने वाले साथियों को वापस लेने का फैसला है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद बोले, पीपल्स पार्टी छोड़कर जाने वाले वापस आ जाए, इन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। पीटीआई नस्लियाती नहीं हादसाती पार्टी है। ये रिपोर्ट देखें। कप्तान के खिलाड़ी बनने वाले जियालों को वापसी की इजाज़त मिल गई। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई में जाने वालों को वापस आने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद ने कहा कि पीटीआई में जाने वाले साथी वापस आ जाएं, माफ़ी तलाफी हो जाएगी। आइंदा इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत हुकूमत बनाएगी। तमाम दोस्तों को जो पीपल्स पार्टी में रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के मिजाज को समझते हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूं वो अपने घर वापस आ जाएं और यहाँ पे आपका मिजाज भी मिलता है, आपकी हर चीज़ मिलती है, इन्हीं के साथ आपका गुजारा होगा। पिछली आपको माफ़ी तलाफी हो जाएगी। अगर आप ये सोच लें, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। राना फारूक सईद का कहना था कि जो भी कोई फौज के साथ टकराएगा गद्दार होगा। पाक फौज के अलावा कोई कुव्वत नहीं जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर सके। हम समझते हैं कि पाक फौज के अलावा कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर सके। हम उनको जो पाकिस्तान के जुग्राफाई सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम उस अदारे के खिलाफ बात नहीं कर सकते। राना फारूक सईद ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अवामी जमात है। पीपल्स पार्टी पर जितना जुल्म हुआ किसी पर नहीं हुआ। पीटीआई वाले इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि ये हादसाती जमात थी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम से बेकसूर करार दे दिया गया है। शहबाज शरीफ के दामाद और शरीक मुलजिम ने अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली। ये रिपोर्ट देखें। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस वज़ीर आज़म के दामाद को क्लीन चिट मिल गई। हारून यूसुफ को नैब ने बेकसूर करार दे दिया। हारून यूसुफ और शरीक मुलजिम ताहिर नकवी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर एहतसाब अदालत पेश हुए। वकील के मुताबिक नैब रिपोर्ट के बाद अब दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे वापस लेने की इजाज़त दी जाए। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने जमानत की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। इस केस में हारून यूसुफ और ताहिर नकवी इश्तिहारी भी रहे हैं। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर कार्रवाई 31 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की कॉपी मुल्ज़िमान को फराहम करने की हिदायत की। समाअत में शहबाज शरीफ की जगह इनके नुमाइंदे अनवार हुसैन पेश हुए। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद और ननकाना साहब के कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतख़ाबात को रोक दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। ये रिपोर्ट देखें। फैसलाबाद और ननकाना साहब में कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के दोनों हलकों में ज़िमनी इंतखाबात को रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई रहनुमा फरक हबीब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। फैसलाबाद के हलका NA 108 और ननकाना साहब के हलका NA 118 में ज़िमनी इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने निशानदही की कि कौमी असम्बली के हलका NA 108 और NA
118 में 28 मई को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए 120 दिन रह जाएं तो ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकता। अब कौमी असम्बली की तहलील में 120 रोज से भी कम वक्त रह गया है और फिर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस्तदा है कि ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल कालअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के दोनों हलकों में 28 मई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को रोक दिया और दरख्वास्त मंजूर कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। समान पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते पुलिस की जानिब से बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को जवाब जमा करवाने के लिए कल तक के लिए मोहलत दे दी है। ने केस पर समाअत की दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, IG और DC लाहौर को फरीक बनाया गया है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईन पाकिस्तान के तहत हर शहरी को नक्लो हरकत की आज़ादी है। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने समान पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते तजावुज़ात के नाम पर बंद कर रखे हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पुलिस और इंतज़ामिया को समान पार्क के तरफ रास्ते फौरी तौर पर खोलने का मात दिए जाएँ। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में जवाब जमा कराने की मोहलत की इस्तदा की है। अदालत ने सरकारी वकील को जवाब जमा कराने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। पंजाब पुलिस के 704 एहलकारों को अगले रैंक पर तरक्की दे दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, महकमाना तरक्की हर ऑफिसर और एहलकार का बुनियादी हक है, जो इसे बिला ताखीर दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखें। महकमा पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी है। 704 एहलकारों को अगले रैंक में तरक्की दे दी गई। DIG टेली कम्युनिकेशन इमरान अहमद की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में 704 एहलकारों को तरक्की देने की मंजूरी दी गई। 15 ASIs को सब इंस्पेक्टर, 237 हेड कांस्टेबल्स को ASI के ओहदे पर तरक्की मिली। इसी तरह 452 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की दी गई। टेली और ट्रांसपोर्ट विंग्स में 6 साल में 600 एहलकारों को तरक्की मिली। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर क़यादत सिर्फ 4 माह में 985 एहलकारों को तरक्कियां दी गईं। एहलकारों का कहना है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मशकूर हैं। मैं जनाब IG साहब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, DIG टेली जनाब इमरान अहमद साहब और SSP टेली जनाब असद सरफराज साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने हमारी प्रमोशन के लिए दिन रात मेहनत की और उनकी खुसूसी काविशों की बदौलत आज हम ASI प्रमोट हुए हैं। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का, जो IG साहब पंजाब इस वक्त लगे हुए हैं, उनका बहुत ज़्यादा मशकूर है हम कि टेली कम्युनिकेशन के ख़ास तौर पर उन्होंने प्रमोशन का जो है वो सिरा अपने सर पर लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि तरक्कियों का मकसद पुलिस फोर्स का मोराल बुलंद करना है, सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक दीगर तमाम फील्ड फॉर्मेशंस में भी तरक्कियों का अमल जारी है। कैमरा टीम के साथ मुजाहिद लतीफ़, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि पंजाब सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की डेलीगेशन का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। वक्त में इंडक्शन कोर्स के 25 ज़ेर तरबियत अफसरान शरीक थे और ऑपरेशन कमांडर SP आसिम जस्ट्रा ने सेफ सिटी की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। वक्त को ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर 15 इमरजेंसी सेंटर, मीडिया सेंटर का दौरा भी करवाया गया। डेलीगेशन को वीडियो सेंटर, ई चलान सिस्टम और सेफ सिटी स्टूडियो की वर्किंग बारे बताया गया। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई वुमेन सेफ्टी ऐप दीगर सूबों को फ्राहम की जा रही हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नाखुशेन है। दौरे के अख्ताम पर दोनों इदारों के माबेन यादगारी शीट्स का तबादला किया गया। वेलकम बैक। आपको बताएं कि गंदम के खुलेआम नकलो हमल पर पाबंदी ख़त्म और परमिट खुल जाने से मसनूई महंगाई के असरात ख़त्म हो गए हैं। ओपन मार्केट में गंदम की बढ़ती कीमतों को क्रैश कर गई हैं और 650 रुपये की कमी से फीमन गंदम 4800 रुपये से 4150 रुपये पर आ गई है, तो वहीं 20 किलो आटे का थैला 2750 रुपये से 2420 रुपये में सप्लाई किया गया। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। महकमा खुराक पंजाब की कोशिशें रंग ले आईं। गंदम की खुलेआम नकलो हमल पर पाबंदी खत्म। परमिट खुल जाने से मसनूई महंगाई के असरात खत्म हो गए। गंदम और आटे की कीमतों में कमी आने लगी। नई गंदम की फीमन सरकारी कीमत 3970 रुपए है। दूसरी तरफ मार्केट में एक माह बाद गंदम और आटे की कीमतों में वाज़ह कमी आ गई। शहरी जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के चुंगल से आजाद हो गए। ओपन मार्केट में 650 रुपए कमी से फीमन गंदम 4800 रुपए से 4150 पर आ गई। 20 किलो आटे का थैला 2750
250 रुपए से 2420 रुपए में सप्लाई किया गया। 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। 1 किलो आटा 120 रुपए में बेचा जा रहा है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार मट्टू का कहना है कि मार्केट में गंदम की कीमतें कम हो गई हैं। सेक्रेटरी फूड जमान वट्टू का कहना था कि गंदम की बैनुल अज़लाई नकलो हमल पर पाबंदी खत्म होने से ज़ख़ीरा अंदोजों की कमर टूट गई है। गंदम और आटे की कीमतें मुस्तहकम हो गई। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर ने नान, रोटी, दूध और दही की कीमतें बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। अशोक और नौर समेत रोटी, नान, दूध का नया निर्खनामा जारी, कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी गई। ये रिपोर्ट देखें। नान, रोटी, दूध और दही की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने रोटी नान बाई एसोसिएशन और दूध फरोश एसोसिएशन की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। ज़िलाई इंतजामिया ने रोटी नान की कीमतें बढ़ाने से माजरत कर ली। ज़िलाई इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक रोटी 15 रुपए और नान 25 रुपए का ही फरोख्त होगा। दूध 140 रुपए फी लीटर और दही 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। दाल मूंग की कीमत में 15 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। बेसन 10 रुपए, दाल चना 5 रुपए, दाल मसूर और काले चने 5 रुपए फी किलो सस्ते हो गए। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में हालिया कमी के फवायद आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नई रेट लिस्टों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएं। आवाम किसी भी जगह रेट लिस्ट की अदम मौजूदगी या ओवर चार्जिंग की इतला दें। ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी तो अच्छा इकदाम है, लेकिन गरां फरोशी को कंट्रोल करना ज़िलाई मजिस्ट्रेट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाका नवाज़ी के इल्ज़ाम पर फ्री आटा स्कीम की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। लाहौर समेत पंजाब भर में 18 लाख आटे के मुफ्त थैले गायब होने का इंकशाफ हुआ है। महबूब खुराक ने 9 डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। मुफ्त आटे की तकसीम में खुर्द बुर्द का मामला। लाहौर समेत पंजाब भर में 18 लाख आटे के मुफ्त थैले गायब होने का इंकशाफ। महकमा खुराक ने 9 डिवीजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है। कमिश्नर लाहौर ने चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी इंक्वायरी कमेटी बनाने की हदायत जारी कर दी। लाहौर, कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहिब में भी आटे के मुफ्त थैले गायब हुए। लाहौर डिवीजन में मुफ्त आटा स्कीम का करोड़ों रुपए का आटा गायब हुआ। कसूर में 2 लाख से जायद, शेखपुरा में 1.5 लाख, ननकाना साहिब में 50,000 थैले गायब हुए। लाहौर में भी मुफ्त आटा स्कीम की मद में 100 से ज्यादा ट्रकों की तलाश जारी है। ज़िलाई इंतजामिया लाहौर, रेवेन्यू ऑफिसर और मुलाजमीन ने सर जोड़ लिए। जराये के मुताबिक लाहौर में गायब होने वाले आटे की कीमत 13 करोड़ बताई जा रही है। तहसील सिटी में आटे के 84 ट्रक कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। 4 तहसीलों में 18 ट्रकों के थैले गायब हुए। डाटा एंट्री में आटे की तकसीम में वाज़ेह फर्क सामने आया। आटा मिलों से जारी हुआ, पटवारियों ने तस्दीक की, लेकिन आटा कहाँ गया तलाश जारी है। ज़िलाई इंतजामिया लाहौर ने कमेटी तश्कील दे दी है। एडिशनल कमिश्नर जनरल ज़ीशान रांझा और एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बना दी गई। ज़िलाई इंतजामिया लाहौर के मुताबिक मामलात की तहकीकात के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अगर मुफ्त आटा स्कीम में कोई मुलव्वस हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा जारी है। बैंकों से तलब पूरी न होने पर ओपन मार्केट पर दबाव आ गया। ओपन मार्केट और इंटर बैंक डॉलर रेट का फ़र्क 21 रुपये की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गया है। मज़ीद आपको ये भी बताएं कि बुध को भी ओपन मार्केट में डॉलर रेट बेलगाम रहा। इंटर बैंक डॉलर रेट में 2 पैसे कमी, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट 2 रुपये बढ़ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 2 रुपये इजाफे के साथ 309 रुपये की सतह पर पहुँच गया। बैंकारी औकात के दौरान डॉलर खरीदारी इंतहाई महदूद रही, जिससे इंटर बैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता हुआ और इंटर बैंक डॉलर रेट 287 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट ज़राए के मुताबिक बैंकों से इंतहाई कम तादाद में डॉलर दस्तयाबी पर ओपन मार्केट में डॉलर की मांग बढ़ गई है, जिससे ओपन मार्केट में डॉलर रेट रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया है। IG पंजाब ने 44 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। SSP उमर फारूक सलामत को SSP पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात कर दिया गया है। अहमद मोहिउद्दीन SP ऑपरेशन CTD लाहौर तैनात किए गए हैं, तो वहीं रिजवान तारिक एडिशनल SP सिविल लाइन डिवीजन गुजरावाला, कैसर मुश्ताक एडिशनल SP सदर डिवीजन गुजरावाला, मोहम्मद अशरफ SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान तैनात किए गए हैं, जबकि आसिम इफ्तिखार PHR SPU पंजाब तैनात किए गए हैं, तो वहीं मुस्तनसर अता बाजवा SP बटालियन 7 पंजाब कांस्टेबलरी लाहौर तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि गुलाम मुस्तफ़ा SP इन्वेस्टिगेशन ननकाना साहब तैनात किए गए हैं और खालिद महमूद तबस्सुम को SP IA
फैसला बाद तैनात किया गया है। खालिद महमूद मलिक को DSP लीगल 1 PTS रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। खालिद सईद DSP MT वर्कशॉप पंजाब, सुबैर अख्तर DTO जहलम और निसार अहमद खान DSP VVIP CTP रावलपिंडी तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि फातिह अहमद DSP 7 SPU पंजाब और आमिर शाहीन DSP DOCTD गुजरांवाला तैनात किए गए हैं। अल्लाह यार DSP न्यू टाउन रावलपिंडी और जमील कैसर को DSP सदर हाफिजाबाद तैनात किया गया है। अरशद अली DSP बरकी लाहौर, हसन अजीज़ DSP मनावा लाहौर और रियाज अहमद DSP हेडक्वार्टर SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स लाहौर और कामरान जमान DSP हेडक्वार्टर PHA लाहौर तैनात किए गए हैं। LDA ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने का काम तेज़ कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रवां हफ्ते सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हफ्ते को लाहौर आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म को शहर के दीगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीराती लागत और सहूलत से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब LDA ने तकमील के करीब पहुँचने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए फंड्स की इस्तदा कर दी। चाइना स्कीम मॉडल बाजार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 2 अरब 50 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए गए। बॉक्सिंग जिम्नेजियम निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की इस्तदा। रक्स शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तकमील के लिए मजीद 32 करोड़ 58 लाख 65 हजार रुपए दरकार। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मजीद 58 करोड़ 76 लाख रुपए की जरूरत है। गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करने के लिए 21 करोड़ 61 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए गए। केनाल रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल करने के लिए 38 करोड़ 84 लाख के फंड्स दरकार हैं। शालीमार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम को मुकम्मल करने के लिए 69 करोड़ 81 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए गए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का आगाज 2017 में साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ही हुआ था। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने LDA को शहरियों से ली गई अराजी का मुआवजा मार्केट रेट के मुताबिक अदा करने की हिदायत कर दी है। मोहसिन नकवी कहते हैं जिन लोगों से अराजी ली गई मुआवजा उनका हक है। ये रिपोर्ट देखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास मुतअद्दिद फैसलों की मंजूरी, बिल्डिंग एंड जोन्स रेगुलेशन में तरमीम का जायजा लिया गया। पंजाब बैंक में टर्न फाइनेंस सर्टिफिकेट के जरिए 2 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी। LDA रेगुलेशन 1978 बराए तैनाती और मुलाजमत में तरमीम की मंजूरी दी गई। अदालती हुक्म पर हासिल करदा अराजी का मुआवजा मार्केट रेट के मुताबिक मुतासरा फरीक को फौरी अदा करने की मंजूरी। पार्क एंड राइड प्लाजा लिबर्टी की दुकानों की नीलामी का इख्तियार LDA ऑक्शन कमेटी के सुपुर्द करने का फैसला। अकबर चौक में फ्लाईओवर बनाने के नज़रसानी शुदा मंसूबे की मंजूरी दी गई। दौरान इजलास चारोया रावी ब्रिज के मंसूबे का सरनो जायजा लिया गया। LDA प्रोजेक्ट्स के लिए मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रांजैक्शन एडवाइजर की खिदमात हासिल करने की मंजूरी। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट और हीट मैनेजमेंट ऑफिसर की तैनाती की भी मंजूरी। ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल साइट्स पर पेट्रोल पंप्स के क़याम के लिए अराजी की अलॉटमेंट का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, सेक्रेटरीज हाउसिंग, खजाना, लोकल गवर्नमेंट, DG LDA और दीगर ने शिरकत की। PHA का माहौल की बेहतरी के लिए ऐसा इक़दाम सामने आया है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनने वाले अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। आपको बताएं कि अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू ने पौधा लगाकर किया। ये रिपोर्ट देखें। प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर डायरेक्टर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब्दुल्ला निसार जीमा, तर्जुमान PHA हसानुल हक ने शिरकत की। अर्बन फॉरेस्ट में पब्लिक पार्टनरशिप के तहत खिदमत फाउंडेशन अहदेदारान और रजाकारों ने 15,000 पौधे और दरख्तों की शजरकारी की। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा शजरकारी ही सेहतमंद माहौल की जमानत है। PHA फिजाई आलूगी के खात्मे, माहौल की बेहतरी और शहर की खूबसूरती के लिए कोशां है। हमारा जो इनिशियल टारगेट है वो 1 मिलियन का है और अगर जो अगस्त से पहले ये 1 मिलियन का टारगेट अचीव हो जाता है तो इंशाल्लाह हम जो है वो 5 लाख के करीब और मजीद पौधे अगस्त के महीने में लगाएंगे। शहर के मुख्तलिफ पार्क, चिल्ड्रन पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, शादमान पार्क, रहमानिया पार्क, नवाज पार्क, शाह जमाल पार्क में अर्बन फॉरेस्ट लगाए जाएंगे। सदर अंजुमन ताशरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास कारोबारी बरादरी के मसाइल, बजट, तजावीज़ और यौम तकरीम शहदा पर तबादला ख्याल किया गया। ये रिपोर्ट देखें।
लेटीज होटल में अंजुमन ताजरान लाहौर का बड़ा कट। इजलास में लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर और ओहदेदारान की शिरकत। मार्केटों और बाजारों के मसाइल, बजट तजावीज़ और यौम तकरीम शुहदा के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट ने कहा कि हुकूमत बजट में ताजरों पर इजाफी टैक्सों का बोझ खत्म करे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करे। मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश है कि चैम्बर जो है हुकूमत के साथ ऐसा लाइजन जो है करे कि कम अज़ कम किसी ताजर को पुलिस वाला आके इस तरह सियासी वाबस्तगी के जो है निशानी पे जलील ना करे, उसको वहाँ से गिरफ़्तार करके मत लेके जाए। अगर किसी ताजर का कोई वाबस्तगी है, किसी का नाम गलत फहमी की बना पे आता है या कोई हकीकी बैनी में अगर किसी पार्टी की नुमाइंदगी अगर कर रहा है तो कम अज़ कम एक दफ़ा उसे मौका देना चाहिए। अंजुमन ताजरान ने यौम तकरीम शुहदा भी भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान किया। निगरान पंजाब हुकूमत ने नए तरक्याती पैकेज में क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर का मंसूबा शामिल न किया। क्रीम मार्केट मंसूबे चौथा माली साल में बजट से ड्रॉप कर दिया गया है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल में क्रीम ब्लॉक प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड्स देने से इनकार कर दिया। सूबाई हुकूमत ने मंसूबे के कसीर फ़ंड्स 2022-23 के बजट में तजवीज़ किए, लेकिन 4 बरसों से इल्तवा का शिकार मंसूबा मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गया। LDA ने करीम ब्लॉक की ट्रैफिक स्टडी और माहौलियाती रिपोर्ट लेने के बाद फाइल बंद कर दी। फंड्स न होने की वजह से LDA ने मंसूबे पर मज़ीद काम रोक दिया। शहर के 9 मॉडल शाहराहों पर वाक़ इमलाक को कवानीन के मुताबिक बनाने के लिए हतमी नोटिस जारी। बयान हल्फी के मुताबिक बिल्डिंग्स में तरमीम करने की डेडलाइन ख़त्म हो गई है। आपको बताएं कि शहर लाहौर के 9 मरकज़ी शाहराहों को मॉडल रोड बनाने का मंसूबा है। हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए LDA ने मॉडल रोड्स पर 500 से ज़ायद इमलाक को सरबमोहर किया। इमलाक मालिकान ने कवानीन के मुताबिक बिल्डिंग को ढाने से मुताबिक बयान हल्फी जमा करवाए, ताहम अब बयान हल्फी के मुताबिक बिल्डिंग्स में तरमीम करने की डेडलाइन ख़त्म हो गई है। LDA ने 9 मॉडल शाहराहों पर वाक़ इमलाक को हतमी नोटिस जारी कर दिया। मॉडल रोड्स पर पार्किंग के मसाइल ख़त्म करने से ट्रैफिक रवानी में बेहतरी और रूफ टॉप गार्डिंग स्मोक में कमी का बायस बनेगी। पुलिस समेत तमाम शहदा और कासियों को हमारा सलाम। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान पर ख़ुसूसी पैगाम बोले, आज वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों से तजदीद अहद का दिन है। क़याम पाकिस्तान बका और सालमियत में लाखों शहदा और कासियों का कीमती लहू शामिल है। हमारे शहदा से मोहब्बत और इज़्ज़त ना करने वाली नफरत का मुस्तहिक़ है। लाखों कुर्बानियों और शहादतों की वजह से बना और उसके बाद इन हजारों शहादतों की वजह से कायम रहा, जो कि वर्दी वालों ने दी। वर्दी का रंग कुछ भी हो, हवाओं में नीला, समुंदर पे सफेद, बॉर्डर पे खाकी, पुलिस की वर्दी का रंग हो, इसके शोहदा को आज सलाम है, इनके गाजियों को आज सलाम है। आज कौम ये अहद करती है कि हम अपने शोहदा को न सिर्फ याद रखेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, बल्कि हर उस शख्स से नफरत करेंगे जो हमारे शोहदा से नफरत करता है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के शोहदा और गाजी और पाकिस्तान इकट्ठे जिंदाबाद। कुछ बात करें महंगाई की तो मुर्गी का गोश्त 3 रुपये सस्ता, कीमत 579 से कम होकर 576 रुपये किलो हो गई है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम बरकरार है। फी दर्जन अंडों की कीमत 270 रुपये मुकर्रर है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर, दिन ब दिन कमी सामने आ रही है, क्या मज़ीद कमी का इम्कान है? आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों में जो है वो आज तीसरे रोज की कमी देखने को मिल रही है। उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ब्रायलर की जो कीमतें हैं वो अवामी क़ुव्वत खरीद के बढ़ती, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर की सेल जो है वो 50 से 60% तक कम हो चुकी थी, जिसके बायस डिमांड एंड सप्लाई में दूसरी आई थी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ना होने की वजह से सप्लाई जो है वो बेहतर हुई थी और मसनूई किल्लत पैदा करके जो कीमतें पहले बढ़ाई गई थी अब वो बतदरीज जो है कम हो रही हैं। आज 3 रुपये प्रति किलो तक कमी की गई है। ब्रायलर जो कबूतर वो 579 रुपये प्रति किलो था, आज 3 रुपये कमी के बाद 576 रुपये प्रति किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 2 रुपये तक कमी देखने को मिल रही है। होल सेल जिंदा ब्रायलर 376, जबकि परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर की कीमत 383 रुपये प्रति किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की खपत जो है वो मौसम में तब्दीली की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। 270 रुपये प्रति दर्जन की
सतह पर आज कीमतें बरकरार रखी गई हैं। अंडों की पेटी 7,980 रुपये की कर दी गई है, जबकि मार्केट में भी अंडा जो है वो शहरियों को 23 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर हैं उनकी जानिब से मौके पर ख्याल किया जा रहा है कि अगर डिमांड बेहतर ना हुई तो इसी तरह कीमतें जो है ब्रायलर की कम होती रहेंगी, क्योंकि डिमांड जो है इस वक्त मार्केट में बिल्कुल कम हो चुकी है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में कमी देखने को मिल रही है। और कुछ दिन से पहले 650 रुपये फी किलो की सतह पर पहुँच चुकी थी, अब तक तदरीज करने के बाद 576 रुपये फी किलो की सतह पर पहुँच चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। कमिश्नर लाहौर और DGLD मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हाउसिंग विंग के मुख्तलिफ डायरेक्टरेट की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि अफसरान अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए ठोस इक़दाम करें, इंटर डायरेक्टरेट कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाया जाए, अवामी मसाइल के हल में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सर्विस डिलीवरी बेहतर करने से ही आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मोहम्मद अली रंधावा ने इजलास में हिदायत की कि अफसरान की कारकर्दगी को इनफरादी तौर पर मॉनिटर किया जाए। वासा पोल यूनियन के वक्त की वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर से मुलाकात हुई है। वासा मुलाजमीन के मसाइल से मुतालिक वज़ीर हाउसिंग को आगाह किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर हाउसिंग को वासा में असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट की 8 खाली सीटों पर प्रमोशन देने की इस्तदा की गई है। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने 30 मई से पहले असिस्टेंट से सुपरिटेंडेंट की सीटों पर प्रमोशन की यकीन दहानी करवाई थी। मुलाकात में पोल यूनियन वासा के अहदेदारान, चेयरमैन मिर्ज़ा नरीम अफजल, सदर सईद खान और जनरल सेक्रेटरी राना सलीम मौजूद थे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज़ मियां मोहम्मद नमान की तुर्की रोड के ताजरों से मुलाकात, अपने मसाइल के हवाले से आगाह की है। आपको बताएं कि तुर्की रोड के ताजरों ने बिजली से मुतालिक अपने मसाइल से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज़ मियां मोहम्मद नमान को आगाह किया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को को इंजीनियर शाहिद हैदर ने बताया कि तुर्की रोड फीडर के लोड को तकसीम करने के लिए नए आलम फीडर पर काम मुकम्मल कर लिया गया है और आलम फीडर से ओवरलोडिंग से निजात मिलेगी। आपको बताएं कि तुर्की रोड के ताजरों ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज़ मियां मोहम्मद तमान और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की कोशिशों को भी सराहा। निगरान वज़ीर मवासलात और एक्साइज बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट पंजाब का इजलास हुआ है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर महकमों के अफसरान ने ब्रीफिंग दी है। आपको बताएं कि इजलास में दरियाई कटाव से मुमकिन सैलाब के सदबाब के लिए तरक्याती स्कीम्स का जायज़ा लिया गया है। मुख्तलिफ अजला की 10 तरक्याती स्कीम ज़ेर गौर लाई गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 10 स्कीम्स पर कुल 1 अरब 19 करोड़ रुपये लागत का तखमीना है। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल ने कहा कि 15 जून से फ्लड सीज़न शुरू हो जाता है, लिहाजा शॉर्ट टर्म इक़दाम भी तजवीज़ किए जाएँ। DGPHA आपको बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर से मानसून और महकमा सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक प्लान तलब कर लिया गया है। सैलाब और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल से निपटने के लिए अफसरान और अमले को ड्यूटियाँ तफवीज़ करने की भी हिदायत दी गई है। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल PDMA की ज़ेर सदारत मानसून और मुमकिन सैलाब के पेशगी इंतज़ामात बारे कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ है। इजलास में डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन PDMA ऑपरेशन समेत दीगर अफसरान की शरीकत और आपको बताएं कि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सूबा के 11 अजला को शामिल किया गया। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग के लिए 6 अजला को हसास करार दिया गया है। DGPHA का इस मुताबिक कहना है कि डेप्यूटी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर कमेटियों के इजलास को खुद इनाकाद करें। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन ऐप का आगाज़ कर दिया गया है। निगरान सूबाई वज़ीर से हैं डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं निगरान हुकूमत आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम, प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी, डॉक्टर आमिर मुफ्ती और दीगर फैकल्टी मेंबरान और तुलबा ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सिम्स में तुलबा को उम्दा तालीमी माहौल मुहैया किया जा रहा है। मेडिकल एजुकेशन बढ़ाने के लिए लीडरशिप भी आनी चाहिए।
पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन ऐप का आगाज किया गया है। I don't think many RF is there that he would know names of all his PG students or न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।